अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं 40 साला सज्जाद का घर है, जो कि 7 बच्चों का बाप है। अपने ही कज़न यानी कि चचा ज़ाद के साथ पैसों का कुछ मामला होता है और उसको मिलने के लिए जाता है। कॉल आती है कि पैसों के जो भी मामलात हैं आज बैठकर तय कर लेते हैं, लेकिन जब जाता है तो उसके बाद वापस घर नहीं आता। जब घर वालों को इतला दी जाती है कि सज्जाद अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसको हवेली के एक कोने में मार कर फेंका गया होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि सज्जाद के जिस्म की एक भी हड्डी जो है वो सलामत नहीं थी। रीढ़ की हड्डी के 17 टुकड़े किए गए थे, हाथ की हड्डियां टूटी, पाँव की हड्डियां टूटी, टांगों की हड्डियां टूटी, सुए मारे गए और उसको वहीं पर बेआसरा छोड़कर लवारिसों की तरह वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अब तक क्या किया है, 8 दिन गुजर जाने के बाद फैमिली क्या कहती है, दुश्मनी क्या थी, बूटे के साथ मामलात क्या थे, फैमिली से बात करते हैं। सज्जाद के बूढ़े वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और जिस हाल में इस टाइम ये मौजूद हैं आप लोगों के सामने हैं। किन्ने बच्चे ने माँ जी? मेरे 4 बच्चे ने। बेटे किन्ने ने? उनका बेटा नहीं, थोड़े किन्ने बेटे ने? मेरे 4 बेटे ही ने। बेटे ही ने? मर गया एक फौत हो गया। 3 ने। अच्छा, सज्जाद की कम करदा सी? मज्जां लेके दित्तियां सी। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ। ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਜਾਦ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਨੇ। ਸਜਾਦ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 ਬੱਚੀਆਂ। 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। 7 ਬੱਚੇ ਨੇ। 7 ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਜਾਦ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਜਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਚੱਡੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਨਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵਿਚਾਰੋ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਸਜਾਦ? ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ? ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਜਾਦ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਾਦ ਲਾਹੌਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੂਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੂਟੇ ਆਇਆ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਖੂਨ। ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਦਾ? ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਮੱਝਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ? ਬੂਟੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਜਾਦ। ਅੱਛਾ। ਬੂਟਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਟ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਵੇਖ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਨੌਵੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਡਾਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੀੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਲੱਗ, ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ। ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਸਗੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਖੱਟ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਕੱਢਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਂਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੌੜ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
पैना पेट पेट के रो के घर नूं कल गईयां थईयां 6 बच्चियां मेरियां 4 मेरे बच्चे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਵਾਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਐਸੀ ਸਹੀ ਚ ਹੈਗੀ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕਮਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਾਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਸਹੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਡ ਚ ਪਾਵਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ 4 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਫਾਵੇ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜਾਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਰ ਮੁਰ ਜਾਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਕੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਗੰਦਿਆ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਇਸਤਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਦਾ ਤੋ ਆਸਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਸੂਏ ਵੱਜੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪੈਰਾਂ ਲੈ ਨਾ ਬੋ ਸਰਾਣੇ ਲੈ ਬੋ ਚੰਗਣਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁਬਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੁਬਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੈਰਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰੋ ਬੂਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਉਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਗੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੈ कर ले तो हाँ कितने बंदे होंगे सानू ये कोई नहीं पता तो ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ देख लें कितने बुजुर्ग माँ बाप हैं वालिद जो है सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी जो है वो इस वक्त आंसुओं से भीग चुकी है एक वो बेटा जो वालदैन को कमा कर भेजता था पिछले 1 साल से इन बूढ़े वालदैन ने अपने बेटे को नहीं देखा था इस वजह से कि आया नहीं जाता इतना सफ़र नहीं तय किया जाता आने का मौका कब मिला जब बेटा इस दुनिया से चला गया जिसने अब कभी भी नज़र नहीं आना बाप से भी बात करते हैं ये बुजुर्गों ज़रा तुसी फड़ लोगे मैं आगे हो जाऊँ चलो मैं हो जाती हूँ अच्छा की रौला है तुहाडे भरावां दे नाल कोई रौला हैगा सी इन्हां दे नाल रौला सी पैसे लग्या सी हैं बूटा पैसे लग्या सी बूटा पैसे लग्या सी अच्छा किन्ने पैसे सन ਇਹਦਾ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਜਰਾ ਮਾਲ ਚੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 3 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੂਟੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਸਨ ਸਜਾਦ ਕੋਲੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ 2-3 ਜਣੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2-3 ਜਣੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਸਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ
ਇਹ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਵਾ? ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੜ ਗਏ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਟ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਚੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਤਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਇਤਲਾਹ? ਇਤਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੋਲਾਂ ਤਲਾ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਤੀ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ? ਦਿਨੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ थाने वाले आए, कद पुड़ के ले गए, मलाजा किया। घर कूड़ के तो साढ़े को चलिया। वो मेरा पुत्र वेख्या ना जावे किते लवो लुहार होई पई। कोई आंढ गुआंढ भज के आए, साढ़े किते वेड़ा पिया पिया भी हस थोड़े बच्चे सजाद नूं की होया। मैं बूटे ने मार सट्या। बूटे ने खरे क्या वैर साढ़े नाल लेना सी, चंगा भला सी, बोलदा चलदा, घरों पैसे दे के तो दुश्मनी से हली। गल जे बाज अस नहीं जवाने मर जम नमाज, सानू इंसाफ चाहिए, साडे नाल इंसाफी करो। तुसीं ते एक साल तो अपने बेटे नूं नहीं सी ना वेख्या, पुत्तर नूं नहीं सी वेख्या, सोचिया सी पुत्तर नूं इस मौके ते मैं वेखण जावांगी, साल बाद पुत्तर इस तरह मैनूं नजर आएगा। मैं तेनूं घर बना के दिता पुत्तर, मेरा पुत्तर कबर च पिया, मैं तलाक ते फुल सके होए। आनिया पुत्रा तेरा उठे काश तू इसे बना के बह गया, क्या बच्चा वाला रोने छुट्टी ला के टिकान आ गई, तियां मेरिया जासी दियां सूटां भर के आ गई, भरा नूं रोंदियां रोंदियां। इंसाफी करो तो तुसां ही करनी है। हाले तिकर बूटा तो नहीं पकड़ा गया, हाले तिकर फिर तुहानू उम्मीद भी नहीं होनी है ना? अजे पड़ी चाहिए हुण असीं की करिए? 4-5 लाख रुपये पिछे मार दिता अपने ही भरा नूं। अपने भरा ही होएगा ना, भरा ही हुंदे ने, होर भरा ही सी, चाचे ताए दे पुत्तर भरा ही हुंदे ने। उन्हें वेला की कीता है, असीं कमाले बंदे आ, पैसे भी लाउण जोगे नहीं है। ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭੱਜਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖਾਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ? ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਹੋਰ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਾਂ, ਭੁੱਲਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਇਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਬੁੱਢਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣੇ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ। मन तो सच तामन करना साडे नाल, ए बुढ़ापे इश्ते औलाद दा दुख उंज ही लग तोड़ देंदा। चलो हौसला करो, अल्लाह तो बेहतर की उम्मीद रखो, अल्लाह बेहतर करेगा, आसानियां करेगा। अच्छा, सजाद वास्ते दुआ करो ना तुसी। अच्छा, अल्लाह उनदी अगली मंजिल आसान करे, अल्लाह बच्चा चाहिए, उनदे बच्चियां नु सबर आवे, उनदी बीवी नु सबर आवे। तेरे ने एक फरिश्ते होंदे बिस्तार नाल कर सजाद अली तेनू अल्लाह तंदुरुस्ती देगा तो तू ना मरे। असी इन्ने जुगे नहीं सहे जेड़े बैल सानू पा गया, निक्के निक्के बच्चों वाला, 5 कट्ठियां धियां, 2 पुत्तर, एक होने वाला। अच्छा, मैं एक होने वाला। हाँ,
ਵੇਖ ਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਪਤਲੋ ਜੀ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਾ ਭੁੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਅਮਾਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜਾਦ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਲੱਤ ਚਪੰਦਾ ਬਾਂਹ ਚਪੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਨੋਂ ਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਛਾਟੇ ਲੀੜਿਆ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੋ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵਿਆ ਮੇਰਾ ਕਫਨ ਖੋਵੀ ਨਾ ਸਜਾ ਡਲੀ ਮੇਰਾ ਕਫਨ ਖੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਜਾਦ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਪੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ हाँ सजाद की बेवा भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं उसके मासूम बच्चे एक बेटी जो सबसे बड़ी है उसकी भी उम्र इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 साल होगी उससे भी बात करते हैं। ये सजाद की बेवा है हमारे साथ इस टाइम मौजूद और शोहर का पता था कि कहाँ जा रहा है किसकी कॉल्स आ रही हैं क्या मामलात हैं। आप तो यहाँ पर ही रहती हो ना तो माँ बाप तो यहाँ पे नहीं रहते वालिदैन तो आपको तो हर चीज़ का पता होगा यहाँ पर कि क्या मामला चल रहे हैं। तो क्या मामला था उसका बूटे के साथ? पैसा ने मामला थी पैसों का मामला था। जी कब से दिए हुए थे पैसे? हो गए ना 4-5 महीने लगे आन। किस वजह से दिए थे पैसे? मतलब कह कि मैं पहली ना लवानी तो मैंने थोड़े पैसे चाहिए ने। ये बूटे ने मांगे थे पैसे? उधारे मांगे थे? उधारे मांगे थे। अच्छा कहना ला जा जो लोड़ तेरी पूरी होगी तो मैंने दे जाए। अच्छा तो कहना तो ठीक है। एक दफ़ा गया उन्हें नहीं दी तो दूसरी दफ़ा गया तो कहना नहीं है गया हाली मेरे को जो अच्छा। मैं दिन दे एक साथ दिए थे 4-5 लाख रुपया एक साथ दिया था? हाँ जी। अच्छा फिर जिदा उन्होंने आख्या भी फोन किया मैं ना मज्झां लियांदियां पिंडों ते आन के लै जाओ। अच्छा वो पैसों की जगह पर जानवर दे रहा था? हाँ जी जानवर दे रहा था। ठीक है। तो घर भी पाया सी 6-7 लाख घर पिया से भी लै गया सी। अच्छा तो फिर 5 बजे फोन आ गया मैं ना कद किते जाना है तो जल्दी आ जा। आपने कहा? हाँ जी उन्हें मेरे बंदे ने किया। अच्छा ठीक है। और चला गया। सानू फिर 9 बजे पता लगा भी उन्हें कत्ल कर दिया। आपने सजाद से पूछा था जाने से पहले कि वो किधर जा रहा है? हाँ जी सानू कह के गया था मैं ना मज्झां देखने चलिया बूटे के पास जा रहा हूँ। हाँ जी बूटे के वेली चलिया वो चला गया है। ठीक है। तो कहना आन के मैं रोटी खाई तो मैं नहीं रोटी खा रहा कहना नहीं मैं आन के खावा रोटी टाइम नहीं हैगा मेरे पास। सानू फिर पता लगा भी उन्हें कत्ल कर दिता। कितनी देर बाद पता लगा था? सानू 9 बजे पता लगा था। गया कितने बजे था? 5 बजे। 5 बजे गया और 9 बजे इतला आई कि अब सजाद को मार दिया गया। हाँ जी मार किसने दिया। इतला दी थी? वो तो मुल्लेदारों को इतला दी थी। फिर पहुंचे आप लोग वहाँ पर? हाँ जी पहुंचे। कौन कौन गया था? मेरा छोटे बड़े भाई से उसके हाँ और मैंने से तो उनके छोटी बड़ियाँ परजाइयाँ थी। अच्छा आप भी गई थी? हाँ जी आप भी गए अच्छा थे। उसकी हवेली में गए हो? हाँ जी उठे तो गया। कौन कौन था वहाँ पर? कोई भी नहीं था। सजाद था वहाँ पर? हाँ जी वो तो गया था तो कत्ल होया था। किधर था सजाद? कहाँ पर था? किस हाल में था? वेली के कंध पे नाल लगा था कंध पे नाल ही पाया थी। अच्छा जहाँ पे जानवर होते हैं? हाँ जी उनके साथ उसको भी रखा हुआ था? जानवर बाहर से तो वो अंदर से। अच्छा बैठा किसी निक्के जे धुंदे च पा दिता सी। अच्छा अच्छा फिर तो फिर उत्थे गया तो पुलिस अगे मौजूद सी उन्हें फिर
पता पुलिस लगा। भी आप लोगों से पहले पहुंच गई थी? हाँ जी, भी पहुंच गई। अच्छा, सजाद को देखा था फिर आखिरी हाँ बार जी, वहाँ पर? हाँ जी देखा। कितना मारा हुआ था उसको? बहुत ज्यादा ही मार से, डंडिया ना मार मार के चकना चूर कर दिता सी उन्हें। ये सिर्फ डंडों के साथ इतना मारा है या हाँ कोई जी। असला वगैरह भी वहाँ पर नहीं, इस्तेमाल? असला नहीं से हैगा, बस डंडे से, डंडिया दे नाल मार मार के उन्हें हड्डियां तोड़ देते सी, बाजू के, बाहां दियां, लत्तां दियां, कमर दियां, सिर में चोट लगाई थी। सुए से भी मारते रहे हैं? हाँ जी, सुबह से मारते रहे। इतनी अजियत क्यों दी? ये तो कुछ पैसों का मामला था, दोनों भाइयों की तरह थे, मामला हल हो जाते। मारने की वजह क्या थी? कोई वजह नहीं सी, अगे भी आंदे जाते सी, हाँ, बस पैसों के मामले थे। कोई लड़ाई ज्यादा बढ़ गई थी इस बार? सजाद घर से गुस्से में गया था? नहीं, चंगा या भला कोई गया लड़ाई सी। की नीयत से गया था? नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं सी भी मैं मेरे नाल इंज हो जाना, कराना घर नहाता है धोता कपड़े पा के गया सी। अच्छा, भी मैनू उन्होंने नहीं सी पता भी मेरे नाल इंज कर, उन्हें खुद बुलाया सी फोन करके। कभी ये शक भी नहीं हुआ होगा कि इस तरह से जान ही ले हाँ लेंगे, जी। ये इस तरह से मार ही देंगे उसको? मार ही देंगे। हाँ, आप तो खुश हो लारे च गया भी मैनू ना मझा देनियां जो पैसे देने ने, मैं लैके आ जांदा। तो मेरा बेटा कहता मम्मी जाना, तो आंदा नहीं तू रहन दे, मैं सुबह देख के आना, तो मैं मझा देखा मैं तो सुबह लैन जाऊंगा, फिर तेरे नाल लैके जावांगा। उन्हें भी घर छड़ गया, कल्ला ही गया सी। फिर उन्हें फोन किया, कह के गया मैं चलिया, तो आदे भाइयों ने कहते फिर तुसी आ जाना मेरे मगर। उनके भाई भी फिर वापस गया चलन, उन्हें गया तो उन्हें मार कत्ल कर दिता थी। अब आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं? हाँ जी, 7 बच्चे हैं। अभी आप हामिला हो? हाँ जी। अच्छा, तो अब इनको कौन संभालेगा बच्चों को? कोई भी नहीं संभालता, आप भी संभालने हैं, और कौन मारा मेरे सिर पे? कोई भी नहीं है। बच्चे पढ़ते थे? हाँ जी, पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते भी थे? हाँ जी। पढ़ा रहा था बच्चों को सजाद? हाँ जी, पढ़ा रहा था। बड़ी बेटी की उम्र कितनी है जो सबसे बड़ी है? रहेगी 14 को साल। ठीक है, और जो सबसे छोटा बच्चा है अभी उसकी उम्र कितनी है? वो साल की है। साल की है। हाँ जी। बच्चों के साथ कैसा बाप था सजाद? सही से, अच्छा से, खाना पीता भी देता थे और कपड़ा भी ला के देता है, सारा कुछ ही अच्छा से। अभी बूटे से ये कभी उम्मीद लगाई थी कि मेरे शौहर नहीं। के साथ ऐसा करेगा? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं सी हैगी बेंज करेगा। कोई गलबात भी नहीं सी एहो जी कि मैनू उन्हें मार ही देना हैगा। इधर पास हो आप बेटा, साथ आ जाओ, बैठे रहो आप। क्या नाम है आपका? ये पकड़ो। आमना। आमना, पढ़ती हो? जी, कौन सी क्लास में हो? मैंने 5 की थी, उसके बाद मेरे अब्बू अकेले काम करते थे और मैंने अपने अब्बू का साथ दिया, छोड़ दिया था मैंने। अब्बू तो काम करते थे ना नीचे हवेली में? जी। आप अब्बू के साथ काम करवाती थी? जी। क्या काम करवाती थी? भैंस वगैरह ही हम दोनों एक साथ ही काम करते थे। मैंने फिर सिर्फ 5 की थी, उसके बाद जब अलग अलग हो गए तो मैंने छोड़ दिया था। अलग किससे हुए थे? जब ये मेरे अब्बू और मेरे ताया सब इकट्ठे होते थे ना, उनसे अलग हो गए थे। फिर मेरे अब्बू अकेले काम करते थे, छोटे छोटे बहन भाई थे, इनको पालने वाला कोई नहीं था। मेरे अब्बू अकेले थे, उनसे काम नहीं था होता, और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने अब्बू के साथ काम शुरू कर दिया था। आप नीचे क्या हवेली में क्या काम करती थी? अब्बू के साथ भैंसों को पट्ठे भी डालती थी, हाँ। और सुबह 3 बजे उठना और शाम को 8 बजे फारिग होकर ऊपर आना, सारा दिन भी वहाँ काम करना, सारा रात भी काम करना। अब छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। इतने दिन हो गया नीचे भी नहीं है जाया जा रहा, और कोई काम भी नहीं है हो रहा। उनके बिना एक दिन भी नहीं था निकलता। आज कितने दिन हो गए अपने अब्बू को नहीं देखा हमने। आपने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि मैं बेटा बनकर अपने अब्बू का साथ दूंगा, है ना? जी। और अब पढ़ाई छोड़ के अब्बू के साथ हवेली, ये हवेली वाला काम तो बच्चियां करती ही नहीं है। वो तो कहती हैं हमने जानवरों के पास ही नहीं जाना। मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने अब्बू का साथ दूं। मेरे अब्बू मुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा मानते थे। हमें इतनी हिम्मत है थी कि मैं अपने अब्बू के साथ सारा काम संभाल सकूं, अपने बहन भाइयों को पाल सकूं। हमने बस यही सोचा था कि मेरे अब्बू हैं हमारे सिर पे, हम अकेले काम करेंगे, उनका साथ देंगे, और हम अपने जो उनसे छोटे बहन भाई हैं उनको नहीं इस काम पे लगाएंगे। वो उनको पढ़ा लिखा के कुछ नौकरियों पे लगाएंगे, कुछ बड़ाई बनाएंगे। हम इस अब जो कर रहे थे ना, बस वही हाल में थे, और आगे हमें नहीं था पता कि ये हो जाना। जब हमारे अब्बू गए हैं घर से तो हमने खाना भी नहीं है खाया। हम रोज़ाना एक साथ इकट्ठे बैठ के खाते हैं, हमने खाना भी नहीं है खाया। जब वो गए हैं मैंने उनके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ी है,
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के मैंने फूक के फिर उनको भेजा। मैंने कहा अबू अल्लाह की सूरत है, जल्दी आना। कहते बस आधे घंटे का काम है। पहले जब अब्बू घर से जाते थे तो आप ऐसे भेजती थी अब्बू को? जी, आज से शुरू जब से मैं पढ़ लिख के मैं फारिग हुई हूँ ना, जब से मुझे सपारा पढ़ना आ गया ना, मैं तब से अपने अब्बू को, वैसे तो मैंने कभी घर से बाहर निकाला ही नहीं है, लेकिन आज ये आ गई थी, मुझे पता ही नहीं था। अब्बू को रुखसत किया, आयतल कुर्सी पढ़ी। जब उनकी कॉल आती थी ना, जो वो पैसे लेने आए थे, तो मेरे अब्बू ने हम सबको इतनी तमीज़ दी है ना कि हमने हर बड़े के साथ इज्जत से और अदब से बात करनी है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं है करनी। और ना ही हमें आज तक हमारे अब्बू ने सिखाया है ये सब, और ना ही हमने आज तक किसी से कोई बदतमीजी की है। जो भी हमने किया ना, अच्छे तरीके से सबको बड़ा कह के बुलाया, चाहे हमसे छोटा है या चाहे बड़ा है, इज्जत की है सबकी। जब वो आए हैं हमारे घर पैसे लेने के लिए, तब भी मैंने ताया करके, सुबह एक कॉल आई है उनकी, वो कहते कि सजाद आ जाओ भैंस देखनी है, तो हमारे पास पैसे नहीं है, मैं भैंस से लेके आया हूँ गाँव से, नहीं तो आके देख लो। तो कहते ठीक है मैं आ जाऊँगा रात को। तो बैड टाइम फिर आ गया, कहते कि अब आना है। अब वो कहते नहीं अभी तो हमारे काम का टाइम है, उसके बाद जब शाम को मैं आऊँगा। कहते ठीक है। उसके बाद शाम को 5 बजे आया, जो कि 5 बजे मेरे अब्बू घर से निकल चुके थे। तो 5 बजे कॉल आई और मेरे भाई, छोटे भाई ने अटेंड की। वो कहते हैं हाँ जी ताया। तो कहते तुम्हारा अब्बू क्या है? तो मेरे भाई कहता कि बस ताया 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहे, 15 मिनट हो गए घर से निकले हुए। तो उन्होंने कोई बात भी नहीं है, कोई ठीक भी नहीं है कहा, और उसी टाइम कॉल कट कर दिया। उसके बाद जब हम इतनी देर तक देखते रहे कि अब्बू अब आते हैं, अब खाना शुरू करते हैं, भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अब्बू के साथ खाते थे? उनके साथ ही खाते थे। जब वो घर से निकले थे ना, तो पता नहीं ना, इतना अजीब लग रहा था, समझ ही नहीं थी आ रही क्या करना है क्या नहीं। मैंने अपने अब्बू के आते सारा काम किया, जो वो कह के गए थे ना, मैंने सभी किया। आते हुए हमने नाश्ता भी बना के रखा कि आएंगे वो करेंगे। और 6 बजे तक हम देखते रहे, फिर 6:30 हो गया। उसके बाद हम बस ना बैरस नहीं था फ़ोन में। उसके बाद हमने बैरस करवाया फ़ोन में, और मैंने अपनी अम्मी को भेजा कि फ़ोन करके देखते हैं, इतनी देर हो गई वो कहाँ रह गए हैं। हमने जब बैरस कराया तो उन्होंने हमारी कार ही नहीं अटेंड की। पहली तो अटेंड नहीं की, और दूसरी बार हमने जब किया तो आगे से हमारा नंबर ब्लॉक जा रहा था। अच्छा। जो 3 नंबर थे ना हमारे पास, हमने उन तीनों पे की और उन तीनों का ही नंबर ब्लॉक जा रहा था। अच्छा। किसी ने भी हमारी कॉल अटेंड ही नहीं की। उसके बाद ये बाहर मोहल्ले वाले और मेरे ताया अब्बू, उन सबको पता चल गया था, और हमें किसी ने बताया ही नहीं कि बच्चे हैं, ज़्यादा टेंशन लेंगे। उसके बाद हमें कोई भी पता नहीं चला। जब मैं गई हूँ रात को 9:30 बजे, अपने अब्बू को जाके देखा कि वो इतनी दूर हवेली है, जाने में आप अकेली गई हो वहाँ पर? मेरे साथ, मेरे जाने से पहले मामा, ताया, ताई सब पहुँच गए थे, हमें एंड पे लेके गए हैं। तो मैं इतनी रो रही थी अपने अब्बू को देखने के लिए, बेचैन थी कि ये सब बातें जो भी कहते हैं ये सब झूठ हैं, मैंने जो सच है वो देखना, मेरे एक बार मुझे मेरे अब्बू दिखाओ। तो वो जब लेके गए हैं, मैंने जब जाके देखा है ना, तो देख के ही नहीं थे जा रहे, पता नहीं ना, लग ही नहीं था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे अब्बू हैं, जिनको मैंने घर से अभी भेजा था, और अब आके देख रही हूँ कि ये मेरे अब्बू ही लेटे हुए हैं। इतनी गंदी हवेली कि हमने आज तक उस हवेली में पाँव नहीं था रखा जहाँ पे मेरे अब्बू को मार के फेंक दिया उन जालिमों ने। आज तक हमने ऐसी हवेली कहीं भी नहीं देखी। हम ताया अब्बू के घर रहते थे, यहाँ पे रहते हैं, हमने ऐसे हालात नहीं देखते। इतना बड़ा गेट लगा हुआ है, देख के ना तो इतनी गंदी जगह देख के इतनी खौफनाक हो रहा है कि इसके अंदर जाएंगे और क्या बनेगा। जब मैं जाके एंटर हुई हूँ, सामने पुलिस भी थी और ताया अबू थे, सब रोक रहे थे कि अंदर नहीं जाना। तो मैं फिर भी ना सबको धक्के लगा के जब अंदर की हूँ ना, मेरी वहाँ पे ब्रेक लगी है जहाँ मेरे अब्बू के पैर थे, मेरे सामने मेरे अब्बू के पैर। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच में मेरे अब्बू हैं। तो देख के ना वैसे ही ना पाँव में से ज़मीन निकल गई थी, देख के ही नहीं थे जा रहे। उसके बाद हमने
मैं बजाय खुद को संभालने के, मेरे साथ मेरी फुफ्फो रो रही थी ना, मैं उनको पकड़ने लग पड़ी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी भी ठीक है। मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे अबू हैं। उसके बाद हमें काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, 9 बजे गए थे, 9:30 बजे, 10, 11, 12 बजे तक वहीं पे बैठे रहे। तो कहते अभी काफ़ी देर लग जानी है तो आप घर पे जाएं। हमें फिर उन्होंने घर भेजा और 4 बजे वो सुबह पता चला कि वहाँ से उठाया और 4 बजे हॉस्पिटल लेके गए थे। अब अब्बू तो चले गए हैं, आप तो अब्बू का बेटा थी ना, अब तो अम्मी का सहारा भी बनना है। पहले अब्बू का बनी थी, अब अम्मी का बनना है। आप तो इतनी बहादुर हो, मैं तो हैरान हूँ, परेशान हो गई हूँ कि आप हवेली में काम करती हो। आप बहुत बहादुर बच्ची हो ना। आपने तो इतने टाइम पहले कुर्बानी दे दी बहन भाइयों के लिए कि मैंने इनको पढ़ाना है। ये तो अल्लाह की आजमाइश होती है। आपका क्या रिश्ता है इनसे? वो बहना को दो, पास करके बोलिएगा। मेरे चाचू थे, मैं आमना की कज़न हूँ। अच्छा, हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? यही कह रहे हैं कि सुबह मेरे चाचू को फौत हुए 8 दिन हो जाने हैं और जिन्होंने उन्हें मारा है वो अभी तक बाहर है। अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ इस तरह मिलता है फिर तो हम जैसों को कभी नहीं इंसाफ मिलना। अगर सिफारिशों से इंसाफ मिलता है तो फिर गरीबों को इंसाफ नहीं मिलना, फिर हम चुप करके बैठ जाएं। हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आगे 8 दिन हो गए और वो पैसे लगा के ज़मानतें ले जा रहे हैं और हम वैसे बैठे हैं। सुबह 8 दिन हो जाने तो हमें भी इंसाफ चाहिए। हम यही कहना चाह रहे हैं बस कि मेरी चाची, मेरी कज़नें हमारे बहन भाइयों की तरह, हमारे चाचू अकेले ही थे जो इनके सर पे थे। अब हमें इंसाफ चाहिए, बस यही कहना हमने। प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मुझे मेरे अब्बू का इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे अब्बू को उन्होंने कत्ल किया ना, वैसे मेरे सामने लेके आए। दिल को तसल्ली तब होगी, मैं अपनी अब्बू की जगह के ऊपर खड़ी तब होंगी जब हमें इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी अब्बू की जगह संभालूंगी, लेकिन तब संभालूंगी जब वो मेरे सामने आएंगे। हमें जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था ना, तो उनकी रिपोर्ट मिली है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो 13 जगह से टूटी हुई थी। इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा है। और ये जो जोड़ वगैरह सारे ये टूटे हुए थे, टांगों की ये हड्डियां जो हैं ये टूटी हुई थी। आप सोच सकते हो कि थोड़ी सी चोट लगे कितनी दर्द होती है। और जिनकी हड्डियां ही 13 जगह से तोड़ी जा रही हैं, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। वो इतनी तकलीफ लेके इस दुनिया से चले गए हैं और जिन्होंने तकलीफ दी है उन्हें अभी तक कोई सज़ा नहीं दी गई। हमें इंसाफ चाहिए। हमें उनको पकड़वाना है। जिस तरह हमारे चाचू को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। अल्लाह पर यकीन है ना? है, उस दिन अल्लाह पे तो यकीन करके बैठे हैं। अल्लाह पे यकीन है ना? जी है। तो अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। इदारों से नहीं रखते, अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें आज तक मैंने इदारों से ना कोई उम्मीद भी नहीं है रखी और ना ही मुझे उम्मीद है। उम्मीद है तो सिर्फ मुझे मेरे अल्लाह पे है। जो लेके गए थे हमारे सामने घर में से, तो उनको सज़ा लाजमी मिलेगी। अगर कोई नहीं ना दिलाता तो मैं अपने अल्लाह पे सोचती हूँ कि वो लाजमी इंसाफ करेंगे। अगर कोई नहीं ना करता तो ना करे। मैं अपने अल्लाह पे उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह भी करेगा इंशाल्लाह। सजाद इनके बहनोई थे, यानी कि इनकी जो बहन है वो सजाद के घर में है। उन बेचारे जो मासूम से बच्चे हैं, जो 7 बच्चे हैं, उन बच्चों के ये मामू हैं। इतने साल हो गए, जाहिर है बहनोई को भी अच्छे तरीके से जानते होंगे, अच्छे ताल्लुकात होंगे, उनके फैमिली वालों को भी जानते होंगे, बूटे को भी जानते होंगे। कभी था कि बूटा ये सब कुछ कर सकता है या इस मुकाम तक ये पैसा ले जाएगा कि खून ही सफ़ेद हो जाएगा? देखो जी, असी तो अज तक सुनिया ही नहीं सी भी सजाद दा हिसाब किताब इत्थे है उन्हां नाल या की बात, क्योंकि असी पत्तों की रहने आ, सानू एडा नहीं है। फोन ते बस हाल चाल पुछ लईगा सी इन्हां कोलों ना। जिस दिन कतल होया सानू कॉल गई 10:15 बजे कि सजाद कतल हो गया। असी उतों गड्डी फड़ी रात के, असी गड्डी फड़ी असी इत्थे आ गए। 12:30 बजे असी पहुंचे इत्थे। साढ़े आन तो पहले तफ्तीशी बैठा, तफ्तीशी आदि कार्रवाई करदा पिया। लाश पई कोल उत्थे, ठीक है। 3 बजे वो रपड़ रुपड़ लिख के क्लीयर करके 3 बजे असी
ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ 13 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 17 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਮਰ ਉਹਦੀ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਕਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਲੱਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੱਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ जिन्हें जोगे हुए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तावन। जाहिर है जो सजाद के जिस्म के साथ किया गया था, जो बदतरीन तशद्दुद उस पर किया गया, ये तो इंसानों से भी बदतर से। हाँ जी बिल्कुल, ये तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता, किसी इंसान को। फिर सक्का भरा ने, भाइयों वाली बात है बिल्कुल। सक्के चाचे दे पुत्र ने, कोई गैर भी नहीं है। कोई गैर भी हुंदा ते हो सकदा इन्ना ना जुल्म, या कोई बहुत नफरत होती है, कोई बहुत बड़ा कोई बदला लेना होता है, कोई ऐसा कोई तनाज़ा होता है। ये तो मामला ही कोई नहीं था, कोई ऐसा मामला। 4-5 लाख तो किसी इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗੋਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो बेटी बता रही है कि बस घर में ही रहता था, घर के नीचे हवेली है, वहीं पर काम करना, बेटी को साथ मिलाकर। सुबह एक अद्धे घंटे ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਪੁਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮਲ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। तो इसी वजह से बच्चे इतने ज्यादा मानूस हैं अपने बाप के साथ, इतने अटैच हैं अपने बाप के साथ। ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਜਮਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ 7-8 ਲੱਖ ਜਮਾ ਸੀ, 6-7 ਲੱਖ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। वो भी ले गया। ਹਾਂਜੀ 5-6 लाख पहले था, 6-7 और ले गया। ਇਸ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ देने पड़ जाए, जानवर खरीदने पड़े, ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 7-8 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਆ, 7-8 ਲੱਖ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। तो कसाईयों की तरह ही उसको तो मार दिया, मार के उसको तो तोड़ कर रख दिया। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਇਨਸਾਫ। ਆਖਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਇਨਸਾਫ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। 8 दिन गुजर गए। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ 7-8ਵਾਂ ਦਿਨ अभी तक ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ, FIR ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद जमानत हो गई। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अपनी आंखों से वो सारा जुल्म देख कर गए थे। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ जिनसे मारते ਜਿਹਨੇ रहे, ਮਾਰਦਾ सूए भी मारते रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਸਨ, ये उनके किसी ਵਿੱਚੋਂ एक ਚਰਬੀ आदमी ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੰਗਾਂ ਤੋਂ। तो ये किसी एक आदमी का तो काम है। ਨਹੀਂ ये ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ अकेले ਹੈਗਾ, बूटे ਇੱਕ का तो ਬੰਦਾ काम ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਜਾਦ ਚੰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਸੀ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹਿਲੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ठीक है, तो बाकी साड़ी तो अपील ही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्या उनको नहीं महसूस हुआ कि अपने आप को बचाने की कहीं पर कोशिश की हो? कोई ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितने लोग थे या मारने वाले कितने थे, या वो अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से
मुसलसल उनके साथ लड़ाई करता रहा होगा। ये तो नहीं कि डायरेक्ट एक ही दफ़ा कोई ऐसा वार हुआ हो कि उसके बाद उसने कोशिश ही ना की हो। रिपोर्ट अज जज साहब अगे गई ना सैशन च, जज साहब दे अगे रिपोर्ट गई, जज साहब ने चश्मा ला के थले रख के पेंसिल मूँह च लै के वो सोचन लग पिया भी इन्ना हैवी रिजल्ट आया DNA का, पोस्टमार्टम का। मेरे को 7 पेपर पे ने, मैं भाई नूं सेंड भी कर दिते ने, 7 पेपर पे ने, क्लीयर आए ने बिल्कुल। और उसके बावजूद जमानत? हाँ जी, उनके बावजूद अज फिर जमानत लै गया बंदा, साढ़े कोलों जमानत लै ते गया अज बंदा। बूटे को उसके बाद देखा है आपने? अज साढ़े कोलों जमानत लई उन्हें, कोई सवाल जवाब, उससे बातचीत नहीं? कोई गल नहीं, कोई बातचीत कोई गल, कोई उसके चेहरे पर जीत के आसार या इस चीज के आसार के भाई मेरा क्या कर लिया? देखो एक बंदे हुंदे ने जिन्हां नूं पिछों सपोर्ट हुंदी, हाँ ठीक, उन्होंने सपोर्ट है किसी MNA दी या किसी चौरी तगड़े दी, उन्होंने सपोर्ट है जिंदे बलबूते ते खुला फिरदा, और उसके बलबूते पे किसी को भी मार के काट के फेंक देगा। पिछे घर हुंदा लगा फिरदा, आजाद लगा फिरदा। असी चुप क्यों? असी कानून वाले वेंदे पे, कानून वाले सानू कब तक कोई सानू देन वेने 4 दिन वेने, जे ना होए तो फिर असी करांगे। भरा मरिया साडा, बच्चे साडे 7 बच्चे यतीम हुए हैं, बहन असी करांगे इंशाल्लाह। असी जिन्ने जो होए की तरफ तो देखा ही फिर असी उंदा लांगे इंशाल्लाह। बाकी बार यही गल कहने कि साडी रिक्वेस्ट है अल्लाह हुकाम कि कानून ही मदद करे, अल्लाह हुकाम अगे असी नहीं कानून नूं हत्थ च लेना चाहते, ये जबरदस्ती सानू ना दवान भी आप तुसी कानून नूं हत्थ च लै लो, असी नहीं चाहते। साडी रिक्वेस्ट है, साडी अपील है कि साडा भरा मरिया, सानू उंदा इंसाफ दिता जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इखलाक। अच्छा, आपने गुस्ल दिया था? जी सिस्टर, मैंने गुस्ल दिया ना उसको, तो उसकी जो टांगियाँ इधर सुराख हुए हड्डियों के ऊपर, खून समझ कर हाथ मारा और नीचे से चर्बी निकल रही है। अच्छा। और पूरे जिस्म के इतना तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद हुआ। मैं तो बूढ़े से कहता हूँ भी अगर हुकूमत आपको फांसी दे देती है या घर वाले माफ़ कर देते हैं बिल फर्ज, मगर एक इंसान को अल्लाह के आगे क्या जवाब दोगे? और पास थे 15-20 बंदे, गुस्ल देने लगे तो वो भी रोने लगे। इतना तशद्दुद आप ही आज तक सुना भी नहीं है। हमारी दरख्वास्त है मरियम साहब से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ ना दे और एक इंसान को इतनी दरिंदगी से नहीं मारना चाहिए, उसको गोली मार देते। वो पता नहीं कितनी अजियत बर्दाश्त करके गया है, वो कितनी तकलीफ में होगा, मुसलसल कितनी देर तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे होंगे, कब तक उसने बर्दाश्त की होगी मार, कब उसकी सांसें ख़त्म हुई होंगी। ये तो सारी चीज़ें वो अपने साथ ही ले गया, ये तो अजियतें तकलीफ़ें वो अपने साथ ले गया, ये तो उसी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप लोग तो देख कर इस हद तक आप की इस टाइम जो कंडीशन है, तो उसने तो बर्दाश्त की अपने जिस्म पर ये सब कुछ। बिल्कुल जी। हॉस्पिटल में मैडम आप देखें, वो जो डॉक्टर होते हैं उनको तो किसी का नहीं होता। बिल्कुल। हम रिश्तेदार समझ के चलो बिल फर्ज कह लेते हैं भी हमें इसका भरम था, एहसास था, अपना था। डॉक्टरों को क्या था? हाँ। उन बेचारों ने देखा 13 जगह से रीढ़ की हड्डी डैमेज है और दोनों बाजू दोनों टांगे टूटे हुए थे, और एक जगह से नहीं बार बार इंची पे, और उसकी कमर जो देखी नहीं जाती थी। डॉक्टरों ने भी कानों को हाथ लगाया होगा। हाँ जी बिल्कुल। और इतने बंदे मैंने आज तक रोते नहीं देखे गुस्ल के वक्त। हमारी दरख्वास्त है DPO साहब से कि डेली खबरें सुनते वहाँ इंसाफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए मगर उस सजार को मिलना चाहिए। बिल्कुल। ज़रा तसव्वुर करें कि 7 बच्चों का बाप जो कि रिज़्क़ हलाल कमाता था, घर में रहता था, बीवी बच्चों के साथ रहता था,
हक हलाल की कमाई उनको खिलाता था। इतना बदतरीन तशद्दुद के हर देखने वाली आँख जो है वो इस टाइम अश्कबार है कि एक इंसान के साथ ऐसा सलूक कैसे किया जा सकता है। इन इदारों को रहम आए ना आए, इन कानूनी जितने भी इदारे हैं हमारे, इनको रहम आए या ना आए, लेकिन ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। सोचें कि ये शख्स जिसने इतना बदतरीन तशद्दुद किया वहाँ पर जाके क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा, इन बच्चों को क्या जवाब देगा, कल को इन वालदैन को, बूढ़े वालदैन को क्या जवाब देगा कि किस तरह से इनका जीने का सहारा, घर का कफील किस तरह से लम्हों में छीन लिया जाता है और उसके बाद इदारे खामोश है और मारने वाले जो जालिम है जिन्होंने जुल्म किया है वो आज़ाद है ज़मानतें करवा कर। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। रात जाते हुए लड़ाई नहीं हुई।